Good morning, everyone. This is Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, in today's worksheet, we will do worksheet 5. So, first of all, what you all have to do, you all have to mention today's date in your copies, and that is 24 July 2020. You all have to mention online classwork in your copies. With that, you all have to mention lesson 11 in your copies, and the name of the lesson is the past tense. In yesterday's worksheet, which was worksheet 4, we have completed lesson 10, and that was the present tense. So in today's worksheet, we will do the past tense. So first of all, see the definitions. So the first definition is there, that is of past tense. So let's see the definition. The past tense of the verb refers to a state, event or an action that happened in the past. So जो past tense होता है, पास्ट टेंस की जो वर्ब होती है, वर्ब की जो फॉर्म होती है, वो किसे रेफ़र करती है? एक स्थिति को रेफ़र करती है, एक इवेंट यानी घटना को रेफ़र करती है और एक ऐसे एक्शन को रेफ़र करती है दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो आपके भूत में, आपके गुजरे हुए समय में हो चुका है. सो जो भी क्रिया आपके बीते हुए समय में हुई है दैट इज़ रिलेटेड टू पास्ट टेंस. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. हियर इट इज़ रिटन ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग एथलीट. सो वो जो है वो एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी था. How we are recognizing that it is past tense? Because here it is written was, and was we use in past tense. So through the helping verb we are able to understand that it is past tense. Second, it is written she came first in the class. वो कक्षा में प्रथम आई. So here we are recognizing that it is past tense by the second form of verb, which is came, because first form is come and second form is came. So second form we use in past tense only, that's why it is past tense. Let's see the next definition, which is past indefinite tense, and that is also called simple past tense, जिसको simple past tense भी कहा जाता है. So what is the definition? Let's see. It is used to talk about things and actions that happened in the past or were regularly done in the past. सो ये किसके बारे में बात करता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस टॉक्स अबाउट द थिंग्स एंड एक्शंस, ऐसी चीज़ें और ऐसे एक्शंस के बारे में बात करता है जो आपके हो चुके हैं. हैपेंड मीन्स सेकेंड फॉर्म इज देयर, जो हो चुके हैं इन द पास्ट, आपके गुजरे हुए समय में हो चुके हैं, और वो रेगुलरली डन इन द पास्ट, या फिर जो आपका गुजरा हुआ समय है उसमें आप उसे रेगुलर बेस पर करते थे. मीन्स ये आपके पास्ट की हैबिचुअल थिंग्स हो सकती हैं. ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. हियर इट इज़ रिटन आई एट 2 slices ऑफ द केक. 8 इज़ द सेकेंड फॉर्म. पता चल रहा है कि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. मैंने कितने स्लाइस खाए केक के? 2 केक के स्लाइस खाए, दैट मीन्स पास्ट में खाए. नेक्स्ट इज दे ऑलवेज वर्कड सिंसियरली. वो हमेशा अपना काम सिंसियरली करते हैं. ऑलवेज मीन्स एक हैबिचुअल एक्शन है दैट हैपेंड इन द पास्ट, वो हमेशा से करते हैं. सो लेट्स सी द नेक्स्ट डेफिनेशन. नेक्स्ट इज, so the next definition is of past continuous tense. Okay, so let's see. It is used for an action that was continuing for some time in the past. So it is used for that action that was continuing for some time in the past. Means आपके गुजरे हुए समय में जो एक्शन कंटिन्यू रहा हो कुछ समय तक, that is about past continuous tense. So let's see the example of, first of all, here it is written they were watching the match. वो क्या कर रहे थे? मैच देख रहे थे. सो वर वॉचिंग मीन्स वर और वॉज और वर जो होता है दैट इज़ द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. नेक्स्ट इज आई वॉज हेल्पिंग माई मदर. मैं अपनी मम्मी की हेल्प कर रही थी या कर रहा था. सो वॉज हेल्पिंग. सो थ्रू द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. मीन्स दे वर वॉचिंग, वो देख रहे थे, पास्ट में कंटिन्यू था. आई वॉज हेल्पिंग, सो मैं मदद कर रही थी, मीन्स पास्ट में जो एक्शन था वो कंटिन्यू था. सो लेट्स सी द नेक्स्ट डेफिनेशन, that is of past perfect tense. So let's see. It is used to talk about an action that was completed at a specific time in the past before the beginning of another action in the past. ये किस एक्शन के बारे में बात करता है? That was completed at a specific time in the past. जो एक स्पेसिफिक टाइम पर पास्ट में कंप्लीट हो चुका है एक्शन, एंड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ अनदर एक्शन इन द पास्ट, यानी आपका जो दूसरा एक्शन है वो शुरू नहीं हुआ था. इट टॉक्स अबाउट 2 एक्शंस ऑफ द पास्ट. जो हमारा परफेक्ट टेंस का एक्शन होता है वो पहले ही ख़त्म हो चुका होता है और उसके बाद ही आपका दूसरा जो एक्शन है वो स्टार्ट होता है. सो परफेक्ट टेंस किसको रेफ़र करता है? उस एक्शन को रेफ़र करता है विच हैज़ कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग द अनदर
action. Okay, so let's see the example. Now you will be able to understand. Here it is written, we had reached to college before it rained. यानी हम कॉलेज पहुंच गए थे इससे पहले की बारिश हुई. तो पहले कौन सा एक्शन हुआ, हम पहले कॉलेज पहुंचे, दैट्स वाई वी हैड kept in past perfect tense. Okay, next is I had gone to bed before the bell rang. मैं अपने बेड पर चला गया था, मीन्स सोने चला गया था जब इससे पहले की घंटी बजी. सो पहले एक्शन कौन सा हुआ, आई हैड गॉन, मैं गया था. ओके, उसके बाद घंटी बजी. तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस किसको रेफर कर रहा है, उस एक्शन को जो पहले ही कंप्लीट हो चुका है दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से. Our next definition is past perfect continuous tense. So let's see the definition. It is used to talk about an action that has started in the past and continued for some time in the past before getting completed. ये किस एक्शन के बारे में बात करता है, जो एक्शन आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ और कुछ समय तक कंटिन्यू रहा एंड देन इट हैज़ कंप्लीटेड इन द पास्ट ओनली. ओके, किस एक्शन के बारे में बात की, एन एक्शन दैट हैज़ स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट बिफोर गेटिंग कंप्लीटेड. शुरू मीन्स ख़त्म होने से पहले कुछ समय तक वो कंटिन्यू रहा. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. दे हैड बीन ट्रैवलिंग अराउंड द कंट्री लास्ट ईयर. वो पिछले लास्ट ईयर से मीन्स जो है वो पूरे देश में घूम रहे थे. नेक्स्ट इज शी हैड बीन कमिंग स्कूल रेगुलरली. वो रोज़ाना स्कूल आ रही थी. आर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट, सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ऑफ द गिवन वर्ब्स. क्या करना है, फिल करने हैं सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ. सो लेट्स सी. शी वॉज प्लेइंग द वायलिन व्हेन हर फादर रिटर्न. जब उसके पिताजी वापस आए तब वो वायलिन बजा रही थी. सो व्हाट इज सिंपल पास्ट, सेकेंड फॉर्म इज सिंपल पास्ट एंड वॉज प्लेइंग इज past continuous. Second is while you were sleeping we finalized the plans for your birthday party. जब तुम सो रहे थे हमने तुम्हारी बर्थडे पार्टी के लिए प्लान जो है वो फाइनलाइज कर लिए. सो फाइनलाइज्ड इज द सेकेंड फॉर्म, दैट इज सिंपल पास्ट एंड वर स्लीपिंग इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Here is written third one. What were you doing when the school announced the results of the competition? तुम क्या कर रहे थे जब स्कूल ने कंपटीशन का जो रिजल्ट्स हैं उनको अनाउंस किया. So here were you doing past continuous and announced means second form of verb, that is simple past tense. Let's see the next one. I was studying before I took up this job. मैं इस जॉब को करने से पहले पढ़ाई कर रहा था. So was studying क्या है आपका, past continuous है and took, take की second form होती है took, that is simple past tense. Let's see the next one. When we were leaving for the airport it rained heavily. जब हम जा रहे थे एयरपोर्ट के लिए बहुत तेज़ी से बारिश हुई. वर लीविंग आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस है एंड रेन क्या शो कर रहा है, सिंपल पास्ट टेंस. ओके, सो दीज वर द फिलअप्स विच वी हैव फिल्ड विद सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, that is fill in the blanks with past perfect or past perfect continuous tense of the given verbs. क्या करना है, we have to fill the blanks with past perfect tense or past perfect continuous tense. So let's see the first one. We had been preparing for the competition throughout the past week. हम पिछले एक हफ्ते से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं. मीन्स हमारा जो एक्शन है वो एक हफ्ते पहले स्टार्ट हुआ और एक हफ्ते से कंटिन्यू रहा और पूरा हो गया. दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज वी हैड विजिटेड गोवा व्हेन वी ट्रैवल टू मुंबई लास्ट ईयर. जब हम पिछली बार मुंबई गए थे तब हमने क्या ट्रैवल किया, हमने गोवा भी ट्रैवल किया. सो वी हैड ट्रैवल्ड, यहाँ पर आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है. नेक्स्ट थर्ड वन, द ऑथर हैड बीन राइटिंग हर नेक्स्ट नॉवल फॉर 3 years. जो ऑथर है वो अगले 3 साल तक अपनी एक नई, नेक्स्ट मीन्स दूसरी नॉवल लिखेगा. हैड बीन राइटिंग, दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. नेक्स्ट इज he just had connected the wires when the lights came on. उसने बिल्कुल उसी समय तार जोड़े थे जब लाइट आ गई. सो had connected, past perfect tense. Next is she had been practicing for the auditions the entire day. वो पूरे दिन से क्या कर रही थी, ऑडिशंस की प्रैक्टिस कर रही थी. Next is they had informed the police before they called the neighbors for help.
इससे पहले कि वो नेबर्स को हेल्प के लिए बुलाते, उन्होंने किसको इन्फॉर्म किया, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया. So this was the exercise which we have filled with past perfect tense and past perfect continuous tense. I hope all the exercises and definitions are clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask in the Zoom meeting, or you can ask on the WhatsApp also between 11:30 to 12 p.m. Okay, so I'll meet you in the another video. Till that, stay home, stay safe. Bye bye everyone.